Let's first talk about the biggest development, the showdown that is being witnessed inside the parliament, protests outside and protests inside as well. The winter session of parliament got off to a stormy start today, with the opposition united in demanding a detailed discussion on SIR. The first day in the Lok Sabha was marked by repeated disruptions. Proceedings were initially adjourned till noon, and opposition members protested, insisting that the House take up discussion on SIR on an urgent basis. Now, this was a far cry from what the Prime Minister hoped for. In his address before the session began, Prime Minister Narendra Modi said the opposition must do its duty in Parliament and focus on raising key issues. He cautioned against post-defeat drama, urging that the opposition parties should deliver. They should talk about people's issues instead of creating disruption inside the House. The PM said Parliament should not be misused to get over defeats, adding that those who are unable to digest defeat must find some other place for their drama. इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे, और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। But the Prime Minister's prophecy came true just minutes later, as the drama that he warned of finally did happen. Outside the House, attention shifted to a very unusual spectacle. Congress MP Renuka Chaudhary arrived at the Parliament, the Sansad Bhavan, with a pet dog, sparking immediate debate and controversy. The sight of a personal pet inside the high-security premises quickly became the day's most talked-about incident. However, when questioned on it, she claimed this is a harmless dog and one that doesn't bite, as compared to some who are inside the Parliament. Listen in. जानवर को पसंद नहीं करते है ना सरकार। गूंगा जानवर गाड़ी में चले गए तो इनको क्या तकलीफ है? काटने वाला कुत्ता दिखा क्या? इतनी सी तो है, काटने वाले और है पार्लियामेंट में, कुत्ते नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न कौन सी सिक्योरिटी कंसर्न है? उसका भी पास बनता है क्या? अच्छा बना दो, बाकी तो हम क्या बोले, बना दो पास उसका। Now, the controversy over Congress MP Renuka Chaudhary's pet dog in Parliament has taken a political turn, with the BJP calling her remarks an insult to democracy. The party has accused Renuka Chaudhary of insulting parliamentarians by referring to them as dogs. Renuka Chaudhary has insulted Parliament and MPs. She brings a dog to Parliament, and when asked about it, she says that those who bite are inside. That means the parliamentary staff, MPs, they are the dogs, in her opinion. She has in the past also insulted our Jawans when she mocked Operation Mahadev and Operation Sindhu. This is the true face of Renuka Chaudhary and the Congress party. They have no respect for Sena, no respect for Samvidhanik Sanstha, for Election Commission, for Judiciary, for Parliament. While the BJP says that Renuka Chaudhary is a repeat offender, it's not just her. Even the Congress party does not respect institutions. The Congress, on the other hand, hit back sharply and accused the BJP of
diverting attention to non-issues. Priyanka Gandhi Vadra says the Prime Minister has ridiculed the seriousness of issues like SIR by labeling opposition's narrative as mere drama. Listen in. I suggest that urgent issues like what you said, pollution, other issues, SIR, which are these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. So let's open this up and go across to our guests. Who's doing drama? We have Dr. Kaushal Kant Mishra of the Bharatiya Janata Party and Sanjeev Kaushik, political analyst. Sanjeev Kaushik, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ड्रामा होगा, और देखिए रेणुका चौधरी क्या कह रही है. डिसरिस्पेक्ट की पराकाष्ठा है ये, not just on part of Renuka Chaudhary but the entire Congress party. स्वाति, पहली बात तो ये कि सदन के परिसर में और सदन में दोनों में अंतर होता है. परिसर में निश्चित तौर पे वो लेके गई और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कारण भी बताया कि कैसे एक जगह दुर्घटना में एक पालतू कुत्ता दिखा और उन्होंने अपने गाड़ी में लिया उसको और लेके आई और फिर उसे वो घर छोड़ने के लिए भेज दी. सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री सदन के शुरुआत के प्रथम दिन ही जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सदन में ड्रामा नहीं होना चाहिए. ड्रामा कौन करता है? क्या सांसद वहां ड्रामा करने आते हैं? क्या ये कहना जरूरी था? क्या हार के हताशा से विपक्षी पार्टियां नहीं उभरी है? विपक्षी पार्टियों को काम करने नहीं आता है? 11 साल पहले जो स्थितियां थी वो क्या थी और आज की स्थितियां क्या है? संजीव जी, अगर भाषा से दिक्कत है, भाषा से दिक्कत है और अगर प्रधानमंत्री के ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करने पे इतनी नाराजगी है तो रेणुका चौधरी ने जो कहा उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि उनका जो कुत्ता है वो बहुत मासूम है, हार्मलेस है और काटेगा नहीं किसी को. जो काटते हैं वो तो सदन के अंदर बैठे हैं. ये आपको नहीं लगता है कि ऑब्जेक्शनेबल है? इस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए? क्या 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 रेणुका चौधरी ने सांसदों को कुत्ता कहा? ये मैं नहीं जानती, उनसे पूछिए डिकोड करने के लिए. एक ही सांस में जब वो कहती हैं कि उनका कुत्ता हार्मलेस है, फिर वो कहती हैं कि काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, तो वो इंसानों को काटने वाला कह रही है, कुत्तों को काटने वाला कह रही है. ये उनसे पूछिए आप. लेकिन एक ही सांस में इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? मैंने कहा कि इसका अर्थ भारतीय जनता पार्टी ने क्या लगाया? क्या उनको कहा गया कुत्ता या उनको काटने वाला कुत्ता कहा गया? आप यदि बातों को तोड़ना मोड़ना चाहती है तो ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो किस परिस्थिति में उसको लेके आई और किस परिस्थितियों में उनको भगाने की बात. लेट मी ब्रिंग इन कौशल कांत मिश्रा. आप लोगों को एक बहाना चाहिए. द भारतीय जनता पार्टी wants a reason to hit out at the opposition, और आप इसको अब राई का पहाड़ बना रहे हैं. The fact that Renuka Chaudhary just happened to come there with a dog and just happened to say कि ये कुत्ता काटेगा नहीं. The people who bite are sitting inside the parliament. आप राई का पहाड़ बना रहे हैं and you call everything that the opposition does drama. स्वाति, बहुत अच्छा हुआ कम से कम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन या रिप्रेजेंट करने वाले ये मान तो रहे हैं कि वो कांग्रेस वाले को ही बोल रही थी, किसी और को नहीं बोल रही थी. क्योंकि वो कांग्रेस वालों के साथ रहती है तो उनके नेचर को जानती है, वो इसी तरह से काटते रहते हैं, तो शायद उनके लिए बोला होगा, तो कोई बात नहीं, चलता है. क्या करें स्वाति जी, मुझे कांग्रेस के ऊपर तरस आता है. एक शेर हुआ करता था कि एक गुलशन की बर्बादी को बस एक ही उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा हर शाख पे उल्लू बैठा. तो कांग्रेस में तो ड्रामा करने वालों की लाइन लगी हुई, उल्लू ही उल्लू बैठे हुए हैं. कोई न कोई आकर के कुछ न कुछ बड़ी स्टोरी दे जाता है. शाम की पॉलिटिकल स्टोरी छोड़ करके हम रेणुका चौधरी के कुत्ते वाले बयान पे डिस्कशन कर रहे हैं. और प्रधानमंत्री जी आज स्वाति जी एक चीज और है, आज गीता जयंती है. आज से करीब 7,500 साल पहले आज ही के दिन, आज एकादशी का दिन है, 11वां दिन है, आज ही के दिन शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने आज के दिन ही गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और वो एक लीडर की तरह आए और उन्होंने उपदेश दिया और कहा गीता के ज्ञान के बारे में. उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी भी आज सदन में आए और उन्होंने सभी लोगों को कहा, आप याद करिए उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़िए कि उन्होंने क्या कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों को संबोधित किया और कहा कि न किसी को जीत का अहंकार और घमंड होना चाहिए, ना ही किसी को हार की हताशा होनी चाहिए. लेकिन डॉक्टर मिश्रा, चर्चा केवल रेणुका चौधरी के बयान पर नहीं हो रही. द लार्जर पॉइंट इज ऑन ड्रामा.
Because the Bharatiya Janata Party says what she is doing is drama, she is a repeat offender. उसी तरह से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ड्रामा आप लोग करते हैं, आप एसआईआर पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, दैट इज ड्रामा. You're not allowing the opposition to speak on issues like SIR and pollution. Priyanka Gandhi says that's drama. चर्चा तो लार्जर एंगल पर हो रही है जिसमें रेणुका चौधरी भी है और आप पर जो एलिगेशन है वो भी है. स्वाति जी, पहले तो ये समझिए कि सदन में अगर कोई चर्चा होती है तो केवल उसी सब्जेक्ट पे चर्चा होती है जिसके लिए कोई बोलने वाला हो. इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता है. मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है, तो उस किसी भी ऐसे मुद्दे पर बहस नहीं हो सकती है जो एसआईआर से कनेक्टेड हो, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का डिसीजन है. सरकार ये क्यों कहती है कि हम चर्चा से नहीं डर रहे हैं, हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं? लेट मी ब्रिंग इन संजीव कौशिक. आज भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट इज रनिंग अवे फ्रॉम डिस्कशन. संजीव कौशिक जी, लेकिन क्या आज ही होना चाहिए? अर्जेंट बेसिस पर आप इस तरह से एक तरीके से अपना रूल चलाने की कोशिश करें? थिंग्स विल हैपन एज पर रूल इनसाइड द पार्लियामेंट. देखिए, प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी थी कि सदन में हंगामा होने वाला है. आते आते उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया, जिस तरह की बातें कही, कहीं से भी वो सकारात्मक बातें नहीं थी. वो एक तरह से पिंच करने वाली बातें थी कि हमने आप शुरुआत कर दी है, उसके बाद से आप कहानी आप शुरू कीजिए. सदन में ड्रामा नहीं होता है. सदन में सरकारी मुद्दों पे चर्चा होती है, बात होती है, बिल पे काम होना था सदन में. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कहने की जरूरत, और खास करके हार से हताशा. इलेक्शन बीत गया है, निश्चित तौर पे जिसको बहुमत मिलना था, जिसको हारना था, वो हार चुका है. उसके बारे में चर्चा करके और ये नसीहत देने की जरूरत कि कैसे आप बेहतर हो सकते हैं, हमसे सीखें. आप साहब, जितनी संवैधानिक संस्थाओं पे आपने कब्जा कर रखा है, केवल वही दे दीजिए, उसके बाद में बता दें विपक्षी पार्टियां की कैसे जीती जाती है. तो जब आप चर्चा करने की बात हो रही है, एसआईआर पे चर्चा करने की बात हो रही है, लगातार ब्यूरो की मौत, माईवे और द हाईवे. एक मिनट, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं संजीव कौशिक जी, आपने कहा प्रधानमंत्री ने पिंच करने वाली बात की, प्रधानमंत्री ने पहले ही इशारा कर दिया कि हंगामा होने वाला है, तो इसमें ऑपोजिशन में कोई पीछे तो नहीं रहा? समाजवादी पार्टी के एमपी रामगोपाल यादव जी ने क्या कहा? अगर एसआईआर पर डिबेट नहीं हुई, हम सदन को चलने नहीं देंगे. तो वो क्या चर्चा की बात कर रहे थे या माईवे और द हाईवे का संदेश दे रहे थे? ये क्या मायने हैं? यहां बीएलओ के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जा रहा है कि बीएलओ, अब इससे कौन, आप इनकार कर रही हैं कि बीएलओ आत्महत्या के लिए सुसाइडल नोट लिख करके वीडियो बना के नहीं आत्महत्या कर रहे हैं? इससे भी आप भी इनकार कर रही हैं क्या? नहीं, मैंने किसी चीज से इनकार भी नहीं किया, आपकी किसी आर्गुमेंट को स्वीकार भी नहीं किया. यदि चर्चा, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पिंच करने की कोशिश कर रहे थे, तो ऑपोजिशन ने जो रुख अख्तियार किया था वो कहां से चर्चा का रुख था? अल्टीमेटम क्या आप नहीं दे रहे थे? आप मुझे ये बताइए कि यदि अखिलेश यादव, आप मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव यदि ये बात कह रहे हैं कि कौन सा उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इतने कम वक्त क्यों दिए गए? पर्याप्त समय दिया जाता, आराम से सारे काम होते, शादी विवाह लगन का समय है, सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं. तो ये कम समय में प्रेशर दे करके आम जनता के ऊपर भी और बीएलओ के ऊपर भी, तो ये प्रेशर देने का क्या मतलब था? आप क्या चाहते हैं? It's an urgent matter since the exercise is underway, since these suicides have come to fore. Urgency है मैटर पे, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? आप मामले को दबा रहे हैं, that's the allegation. And क्या अगर यही रुख रहा तो विंटर सेशन में भी कोई काम हो पाएगा? अब देखिए, ड्रामे की बात क्यों कही, पहले उसको बता देता हूं. आपने देखा जिस तरह से पिछले सदन चले हैं, हर बार मेजॉरिटी सदन जब पूरा निकल जाता है तो उसके बाद थक हार के लोग चर्चा के लिए बैठते हैं, तो उसे ड्रामा कहते हैं. एक बार नहीं, 2024 के बाद जब से सदन चला है, हर बार यही हो रहा है और काफी समय से यही हो रहा है कि जो मेजॉरिटी, जैसे 15 दिन का टाइम है तो 10 दिन पहले ड्रामा चलेगा, उसके बाद 5 दिन अटेंडेंस चलेगी, तो ये इसको ड्रामा कहा जा रहा है. दूसरी चीज जो आप कह रही है बीएलओ वाली बात, वो घटना है जिसकी जांच होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव के हेड में आता है, उसकी जांच होनी चाहिए. सीरियस इशू है, लेकिन क्या सीरियस इशू है तो इस तरह से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग और पार्लियामेंट के जो गाइडलाइंस है, जो उसकी रूल बुक है, उसको बाईपास करते हुए चर्चा होगी. तो आपने खुद बताया कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम हर इशू पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा का एक तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, प्रोसीजर होता है. मिश्रा, एक एलिगेशन ये भी है कि आप चाहते हैं कि ये हंगामा होता रहे, आप चाहते हैं कि ड्रामा होता रहे क्योंकि आप थोड़ा बैकफुट पर हैं इस मुद्दे पर. इज देयर एनी ट्रूथ टू दैट एलिगेशन? क्या इसमें कोई सच्चाई है? अरे, हमें बैकफुट पे होने की जरूरत ही नहीं है. मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, तो उसमें हम कहां से बैकफुट पे आ गए?
Okay, हम all कहां से right. बैकफुट है बताइए? Okay, all right. That's all the time I have. Dr. Mishra and Sanjeev Kaushik, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. The opposition says not allowing a discussion or debate to happen on SIR and the issue of pollution is drama. Whereas remember what the Prime Minister said, that the opposition will have to forget about the poll defeat, the electoral defeat, and move on. And we are moving on as well.